So this is the model of the upper limb जो हम आज रिवाइज करने वाले हैं. सर स्टार्ट करें. ओके जी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. दिस वन इज सुप्रास्पाइनेटस, Yes. दिस वन इज द इंफ्रास्पाइनेटस, दिस वन इज द टीरेस माइनर, राइट. दिस मसल इज द टीरेस मेजर मसल, राइट. ठीक हो गया. नाउ डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे द फर्स्ट मसल आपकी जो नज़र आ रहा है, दिस वन, दिस इज द लेटर हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल, दिस वन इज द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल, and this one is the medial head of the triceps muscle, ठीक हो गया. right. Okay, सर now we यहाँ come पे to एक the स्पेस क्रिएट हो रही है इधर. okay, this one, this is the lower triangular space. This or is the lower triangular yes, space. इसका जो content है that is the circumflex scapular artery. Circumflex इसकी scapular boundaries हैं artery. superiorly by the teres minor, below by the teres major and laterally by the long head of the triceps muscle. Okay. ठीक है, ये triceps. उसके बाद आप इधर आ जाएं तो भी on the anterior aspect, तो ये आपको जो मसल नजर आ रही है जी आपका सबस्कैपुलरिस, Subscapularis. ठीक है. यहाँ पे यू कैन सी बिलो है द टीरेस मेजर मसल, और ये जो आपको छोटा सा पार्ट नजर आ रहा Dissected. है लैटिसिमस डॉर्सी, Dissected latissimus dorsi. ठीक है. सब कट है जब तक लैटिसिमस डॉर्सी टेंडन नजर आ रहा है उसका, ठीक है. ओके, और हियर यू कैन सी दिस वन, दिस वेसल, दिस एन एक्सिलरी आर्टरी. Yes. And these are the cords of the brachial plexus around the artery. This is the lateral cord present on the lateral aspect of the artery. This one is the medial cord over there, and this one is the posterior cord. ठीक है. Okay. Now posterior cord से ये nerve है, ये कौन सी nerve है? ये आपका posterior cord की branch आ रही है. This is called as the thoracodorsal nerve, Thoracodorsal जो कि आपके ये nerve. latissimus dorsi को सप्लाई कर रही है. Latissimus dorsi को सप्लाई करती ठीक है. उसके बाद ये जो ब्रांच आपको नजर आ रही है, ये एक्सिलरी नर्व है, which Axillary passes nerve. through this quadrangular space. ये quadrangular space है. जी जी, quadrangular इसकी space है. boundaries क्या हैं? इसकी बाउंड्रीज में स्पीड इसकी टीरेस माइनर आता है, लेकिन इसकी ये जो है कोस्टल सरफेस है, तो कोस्टल सरफेस पे यहाँ पे सबस्कैपुलरिस इज फॉर्मिंग द अपर बाउंड्री. ठीक है. ठीक है. लेकिन वैसे हाँ, डॉर्सल एस्पेक्ट पे देखेंगे तो ये टीरेस माइनर आएगा, ठीक है. नीचे टीरेस मेजर होगा, ठीक है. एंड मीडियली देयर विल बी द long head of the triceps muscle and laterally the surgical neck of the humerus. Okay. It is going to form this boundary, ठीक है. तो ये quadrangular space में से क्या क्या गुजरता है? इसमें से आपकी एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी पास कर रही है. Okay. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद आप इसको आगे फॉलो करें तो द मीडियल कॉर्ड से जो आपको ये जो बिग एक बड़ी नर्व नज़र आ रही है, दिस इज द अल्नर नर्व, right. Ulnar nerve. Ulnar nerve is running on the the medial aspect of this artery. This is the brachial artery. You see at the lower part of the teres major, the axillary artery is converted as the is continuous as the brachial artery. Now सर यहाँ पे वो पीछे एक ब्रांच दे देगी प्रोफंडा ब्रेकर है जो रेडियल नर्व के साथ स्पाइनल वो आपकी लो ट्रायंगुलर स्पेस में से पास करेगी. इट विल गो टुवर्ड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड पास इन द स्पाइनल ग्रूव, ठीक है. रन द स्पाइनल ग्रूव. Now here anteriorly you can see in the mid of the arm, the brachial artery will give a branch that is a superior ulnar collateral artery, which passes along with the ulnar nerve, and they both pierces the medial intermuscular septum and goes in the posterior compartment of the arm and passes behind the medial epicondyle of the humerus. तो ये सर ये जो है ये सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी और उसके साथ अल्नर नर्व है, ये दोनों पियर्स कर जाएंगी मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम और and they will go in the posterior compartment. posterior compartment. ठीक है, ठीक है. Okay. Now here you can see on the lateral aspect of artery this big nerve running downward. This is the median nerve, which runs on the lateral aspect of the artery, right, and crosses over just above the cubital fossa. It crosses on the lateral to the medial side and comes to lie on the medial aspect of the artery. So in the cubital fossa you can see तो सर ये पहले जो on है the medial aspect of the artery. ठीक है, पहले जो है आपकी नर्व लैटरल जा रही है ब्रेकियल आर्टरी से मीडियल नर्व, और फिर ये क्रॉस ओवर कर जाती है क्यूबिटल फोसा के ऊपर एंड देन इट लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी. Yes. So in the cubital fossa इसके जो contents हैं ना, contents of cubital fossa from medial to lateral, median nerve, brachial artery, tendon of the biceps and then the radial nerve. ठीक है, radial, right? Okay. ये आपके हो गया जी. सर ये हमने क्यूबिटल फोसा भी पढ़ लिया है. क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं. ओके, यहाँ पे यू कैन सी दिस वन. सर हम क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज भी कर सकते हैं. क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज अभी वो जब हम ये फोरम करेंगे ना कर लेंगे, ठीक है. ओके, नो यहाँ पे ये आपको जो मसल नज़र आ रहा है, दिस वन, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वैली ना, इट्स अ स्मॉल वैली
ये basically is a coracobrachialis muscle, which is you can see the pierced by this nerve, that is a musculocutaneous nerve, which is branch of the little cord. ये देखिए little cord brachialis की branch आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से निकलेगी, is going to pierce through this muscle, and then it will come to lie between the biceps muscle and the brachialis muscle. तो ये जो आपने उतारा है ये biceps muscle है, ठीक है. You can see this nerve is running downwards and laterally, and then above the 2 to 3 centimeters above the elbow, it is going to pierce the deep fascia, and which will become superficial continuous as the lateral cutaneous nerve of the arm. ठीक है. सो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पहले इसके डीप जा रही है कोरैकोब्रेकियालिस और बाइसेप्स ब्रेका के बीच में, लेकिन इस पॉइंट पे आके ये फेशिया को पियर्स करके सुपरफिशियली लाई कर जाएगी और बन जाएगी लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म. ठीक है. अच्छा, अब ये आप जो मसल देख रहे हैं, ये बाइसेप्स, ये बाइसेप्स के 2 हेड्स हैं. ये देखिए, ये शॉर्ट है द बाइसेप्स अलोंग विद द कोरैकोब्रेकियालिस कमिंग फ्रॉम द, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द कोरैकोइड प्रोसेस, टिप ऑफ द कोरैकोइड प्रोसेस. ठीक है. एंड देन द लॉन्ग हेड, द लॉन्ग, ये वो टिप था ना, ये वो टिप, ये देखिए ना, ये मीडियल साइड से आपको कोरैकोब्रेकियालिस आ रहा है, ठीक है, और ये जो है आपके जो लेटरल एस्पेक्ट है यहाँ से आपका शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेका आ रहा है, और यही वो दोनों की ओरिजिन हम दिखा रहे हैं. ठीक हो गया. ये okay, the long head of the biceps here are right, so is going to make this tendon over here. ये long head of biceps आ रहा है. ठीक है, ठीक है. ये दोनों मिलके एक पहली बना रहे हैं, right? ठीक हो गया. Now this muscle is biceps, of course we are talk about it earlier, and this is a brachialis जिनके बीच में musculocutaneous nerve पड़ी है. The anterior compartment of the arm contains the 3 muscles, biceps, brachialis and the कोरैकोब्रेकियालिस. कोरैकोब्रेकियालिस इसके साथ में ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा लॉन्गिट्यूडनल 3 मसल. ठीक है जी, ठीक हो गया. ये सर हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म हो गया. और यहाँ पे आपको जो रिलेटरली ये जो नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली द ब्रेकियालिस मसल. ये ब्रेकियालिस ही है. ठीक है. यहाँ बात क्लियर सर, लेकिन ये कोरैकोब्रेकियालिस था, ये कोरैकोब्रेकियालिस है, और अब ये ब्रेकियालिस. इट इज गेटिंग ओरिजिन फ्रॉम द कोरैकोइड medial tip of medial aspect of the tip of the coracoid process, and is going to be inserted on the medial बॉर्डर पे ना 5 सेंटीमीटर, मिडल 5 सेंटीमीटर में जाके अटैच हो रहा है आपके ह्यूमरस में. ठीक है. ओके, सबसे डीप है ना. हाँ जी, यहाँ उसके बाद ये हमने ट्राइसेप्स भी कर ली है, राइट? नहीं सर, ट्राइसेप्स अभी हमने करना है. ट्राइसेप्स मैंने बताया नहीं, एक दफा और करा दें. ओके, द ट्राइसेप्स द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मैंने बताया था. दिस वन इज द लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल. यस. दिस वन इज द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल, एंड दिस वन इज द दिस स्मॉल पैच मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल के बीच में. तो थोड़ा सा मीडियल हेड जो है हमारा एंटीरियर में ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैप कर रहा है. ठीक है. अच्छा, नाउ वी कम टू द फोर आर्म. आर्म हमारा मुकम्मल हो गया जी. सर. ठीक है सर, ये कौन सी आर्टरी और नर्व है? ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक्सिलरी क्वाड्रेंगल स्पेस से पास करेगी एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. ठीक है. पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, राइट? ठीक है सर. दे बोथ विल गो फ्रॉम हियर, गो टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंड देन इट इज गोइंग टू वाइंड अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है. तो ये वही दो, ये आपकी एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आ जो वहां से घूम के यहाँ पे आके आपकी एक्सिलरी नर्व जन एंटी एंड पोस्टीरियर डीएन दे देती है. ठीक है. यहाँ से गोइंग टू सप्लाई द डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेगी, एंड आल्सो इट इज गोइंग टू फॉर्म द अपर लेटरल क्यूटेनियस ऑफ द आर्म. ठीक हो गया. फिर ये अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म बन जाएगी, और मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म बन जाएगी. ठीक है. अब आप आ जाए फोर आर्म में. फोर आर्म में वी हैव गॉट these muscles of the anterior compartment. First of all, ये जो आपको नजर आ रहा है, this is the pronator teres. ठीक है. Then this is the flexor carpi radialis. Then this long short belly and long tendon, the pectoralis longus. ठीक है. और उसके नीचे आपको ये जो मसल नजर आ रहा है, this is a middle layer muscle basically, that is a flexor digitum superficialis muscle, and then this one that is a flexor carpi ulnaris muscle. ठीक है. ठीक है. ये सर, ये एक दफ़ा यहाँ से रख के दिखा देते हैं. ये हमारा कौन सा था? pronator teres. ठीक है. दिस इज द फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस. देखिए आप रेडियालिस रेडियल साइड तक आ रहा है. देन दिस वन इज द पमेरिस लॉन्गस. ठीक है. पमेरिस लॉन्गस हमारा ये बीच वाला होता है ना, ये वाला. ठीक है. व्हिच इज गोइंग टू बी इंसर्टेड एट द जैसे फ्लेक्सर हेड नेकुलम पे आके बिल्कुल बीच में, हां, सेंटर में आ रहा है. ठीक है. लॉन्ग टेंडन होता है. ठीक है. उसके नीचे आपको ये जो नजर आ रहा है मिड लेयर का जो कंपार्टमेंट का जो मसल है, दैट इज द फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस, और जो मोस्ट मीडियल दैट इज द फ्लेक्सर कार्पी ulnaris. ठीक है. अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, सुपरफिशियल लेयर रिमूव कर रहे हैं. ओके. उससे पहले भी हम क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज देख लेते हैं. क्यूबिटल फोसा में आप देखें तो ट्रायंगुलर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्पेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ठीक है. बिटवीन द टू एपिकॉन्डाइल्स एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, राइट? दैट इज गोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल और दिस क्यूबिटल फोसा, एंड द मीडियल बाउंड्री दैट इज बेसिकली फॉर्म बाय दिस वन, दैट इज द pronator teres का जो लेटरल बॉर्डर है, एंड देन द लेटरल बॉडी इज फॉर्म बाय द
medial border of the brachioradialis muscle. ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है जी, उसके कंटेंट्स हम कंटेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं हाँ इसमें, ठीक है जी। जी। उसके बाद जब अगर हम उसके जो सुपरफिशियल लेयर के मसल को रिमूव करते हैं, विल कम अक्रॉस द डीपर लेयर मसल्स, ठीक है। यहाँ पे जो सर ये नजर आ रहे एंटीरियर हैं कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के सुपरफिशियल लेयर हमने रिमूव कर दी है, इसमें हमने आपका ये डिस्टेंस सुपरफिशियल भी रिमूव कर दिया, मिडिल लेयर भी चली गई है। नो ठीक है। नो हम you deep can layer see देख रहे हैं। the muscle, the structures lying between the deep muscle, deep layer and the superficial layer, ठीक है। तो deeper muscle over here, this is the ये आपका ये profundus है जी, flexor digitorum profundus. On the lateral side आपको पता है कि lower 1/3/4 से जो मसल आ रहा है, that is the flexor carpi, sorry, flexor pollicis longus, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है जी, ये मसला आ रहा है, राइट। ठीक और है। तीसरा जो डीपेस्ट मसला है, दैट इज द कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर, जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, राइट। इट इज द डीपेस्ट वन, इंटरनल्स के पीछे पड़ा होता है, ठीक है। ठीक है। इट्स लोअर 1/4 ऑफ द रेडियस और अल्लाह के दरमियान में पड़ा होता है, जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम रिमूव करते हैं, ओके विल कम अक्रॉस विद दीज नर्व एंड वेसल्स नाउ। ये जो आपको सबसे पहले ये जो आपको जो नर्व नजर आ रही है रनिंग अलोंग द मीडियल मार्जिन ऑफ दिस अल्नारिस बेसिकली, ठीक है, फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस। ठीक है। दैट इज दिस इज अल्नर नर्व, राइट। दिस इज द अल्नर नर्व। दिस इज अल्नर नर्व, ठीक हो राइट। गया। इसके साथ ही इन द मिड ऑफ द फोर आर्म इसे आर्टरी ज्वाइन करती है। व्हेन द यू सी द ब्रेकियल आर्टरी कम्स एट द लेवल ऑफ द Neck of neck of the radius. radius, it divides into the radial artery and the Ulnar ulnar artery. artery. So ulnar artery will travel, passes deep to the ulnar head of the pronator teres, which is run करेगी, right, and it is going to lie on the lateral aspect of the ulnar nerve in the mid of the forearm. ओके। उसके साथ ये रन करती जाएगी, and then both of them they come downwards and they passes to the canal of Guyon and enters into the हैंड, palm, ठीक है। ठीक है जी, ये गायन कनाल के थ्रू हैंड में चली जाएगी। उसमें चली जाएगी, राइट। ओके, उसके बाद दिस नर्व यू विल बी कमिंग अक्रॉस ओवर हियर, दिस इज द बेसिकली द मीडियन नर्व, ओके। ठीक है। एंड मीडियन नर्व इट इज गोइंग टू एंटर द फोरआर्म बाय पासिंग बिटवीन द, किसके आएगी जी, बाय पासिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ द पोर्टेटर टीरीज मसल। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि जी आपकी जो अल्नर नर्व है, इट विल एंटर द फोरआर्म बिकॉज अल्नर नर्व मैंने बताया था कि गोज पोस्टीरियरली behind the medial epicondyle. Yes. Then it will leave the medial epicondyle, passes from the medial collateral ligament से pass करेगी, ठीक है। Then it will pass between the two heads of the origin, the flexor carpi ulnaris, and it will come to lie. एक बार रिपीट कर लेते हैं। अल्नर नर्व यहाँ से पीछे चली जाएगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में, ठीक है, ठीक वहाँ है। पे जाइए medial epicondyle के पीछे चली जाएगी, Medial right? epicondyle जहाँ पे के आप पीछे से जाएगी। चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद it is running, it passes along the medial collateral ligament, आपको वहाँ से पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के पास से पास करेगी, ठीक है। और वहाँ से it passes between the two heads of the फ्लेक्सर carpi कार्पाई ulnaris, अल्नारिस, और यहाँ पे एक टनल भी बनती है। सर कौन सी टनल बनती है? क्यूबिटल टनल, The cubital tunnel, right? क्यूबिटल टनल के बीच ठीक में है, से गुजरती है। yes, then it will pass from here and is going to come to lie in the anterior compartment of the forearm, ठीक है। यस सर। Okay, now the median nerve will leave the cubital fossa and passes through the anterior compartment, enters the anterior compartment by passing between the two heads of the pointer teres muscle, पोस्टीरियर टीरीज के दोनों ठीक है हेड्स के जी। बीच में Then से it is going to run between, you see the superficial and deeper layer, that is the superficialis and profundus के दरम्यान में रन करेगी, and ultimately it passes behind the flexor retinaculum Yes, and sir. enters the palm, बिल्कुल। ठीक है, थ्रू द कार्पल टनल। ऐसे ही कार्पल टनल होती है सर। ओके ओके नाउ दिस तो ये मीडियन इसी नर्व, नर्व की इन्फ्लेमेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। जी इसी वजह से हो जाता है, हम आगे देख लेंगे। उसके बाद कार्पल मीडियन नर्व विल जैसे ही एंटर होगी ना फोर आर्म, इज गोइंग टू गिव अनदर ब्रांच, द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व एक ब्रांच देगी, ठीक है, विच इज बेसिकली द नर्व विच गोज टू द डीप मसल ग्रुप को जाकर सप्लाई कर रही है, ठीक है, ठीक है। उसके एंटीरियर बाद इंट्रोशियस नर्व, जी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व which is accompanied by, you see the जैसे ही ulnar artery जो है it will enter in the forearm, it is going to give a branch that is called as the common introitious artery. कॉमन इंट्रोशियस Common introitious artery passes posteriorly, इससे just 0.5 centimeter का trunk होता है, ठीक है, ठीक है। but it passes backwards and then it divides into two branches. Anterior, you can see this one, the anterior introitious branch and the posterior introitious artery, ठीक है। ठीक है। Posterior introitious artery passes from the upper gap present in the introitious membrane, goes into the posterior The compartment of introitious the membrane forearm, between the radius and ठीक है। ulna, उसके और here upper gap से पीछे जी, चला गया। and then the anterior introitious nerve which is a branch of the median nerve and the anterior introitious artery which is a branch of the common introitious artery, they both run ट्रैवल फर्दर, right ठीक है, in distance। the deeper muscle group there, especially they lie in direct contact with the introitious membrane, introitious membrane के ऊपर रन करते तभी हैं, इनका नाम इंट्रोशियस भी है। ठीक है, इसके रोशन में रन करती है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। ओके, देन वी विल कम अक्रॉस टुवर्ड्स द एंटीरियर कंपार्टमेंट, खत्म ही हो गया ना? जी ठीक है। सर, एंटीरियर कंपार्टमेंट खत्म हो Okay, anterior compartment radial artery रह गई जी। Now the radial artery, it
when it will get origin at the neck of the radius, it runs laterally. ठीक है? ठीक है। It runs laterally between these superficial and deep muscles, right? And then it is going to come. ये कौन सा है? जी बच्चे, ये आ रही है रेडियल आर्टरी, इसलिए यहाँ से ठीक है सर, बनेगा। ये radial इसलिए artery ये है। यहाँ से बाइफरकेट की ना, यहाँ से जी। शो नहीं किया हुआ, राइट? जी सर। ये आ रही है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कमिंग डाउन ओवर हियर, राइट? जी सर। And then in the mid of the arm, यस सर, it is joined with a superficial branch of radial. So you can see सुपरफिशियल the ब्रांच ऑफ yeah. सर, कभी कभी हम सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व को भी क्यूबिटल फॉसा में काउंट करते हैं, नहीं, नहीं? एक्चुअली रेडियल नर्व जब आती है ना, इट पासेस थ्रू योर स्पाइनल ग्रूव अलोंग sir. विद द प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, यस सर, ठीक है? तो इट इज़ गोइंग टू इट रन्स फ्रॉम द मीडियल टू द लेटरल एस्पेक्ट। यस तो ये सर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म में आएगी एंड इट पियर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर अबव द लेटेंट मस्कुलर सेक्टम एंड इट यू कैन आल्सो से दैट एट द इंसर्शन डेल्टॉइड मसल की जो इंसर्शन है ना, वहाँ से इट इज गोइंग टू पियर्स द लेटेंट मस्कुलर सेक्टम ठीक हो and गया। comes to lie in the lateral aspect of the arm. ठीक Then it runs along the biceps के lateral aspect में run करती है, यहाँ पे आएगी triceps के, sorry, and then ट्राइसेप्स के लैटरल एस्पेक्ट पर रन it करते will हुए reach at the lateral epicondyle के front पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद will give in the two branches, The superficial branch and the deep branch, The ठीक है। deep branch, superficial branch then run along under the cover of the brachioidalis muscle. Brachioidalis के नीचे run करेगी, ठीक है, ठीक है? And then in the mid of the about upper 2/3 of the forearm में it is joined by this radial artery. ठीक है, ठीक है, on this medial aspect. ठीक है। अपर 2/3 ऑफ हम फोरआर्म में आ गए, यहाँ पे ये जॉइन कर गई रेडियल आर्टरी के रेडियल साथ, आर्टरी ठीक हो ठीक गया। है। उसके बाद in the lower part of the forearm it is going to pierce the fascia and become superficial, ओके, ठीक है? और यहाँ पे आपकी जो रेडियल आर्टरी है it will be coming also superficial and it is basically lying between the tendons of the brachioidalis and the flexocarpioidalis. ठीक है, And यहाँ पे it is just lying against the lower end of the anterior surface of the radius bone ठीक हो where गया। it can be palpable. यहाँ पे palpable palpable, भी हो। ठीक है जी? सर इसके साथ एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स भी कर लें या वो बाद में करेंगे? क्या? एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स, Anatomical stuff box speak कर लेंगे when we talk about this posterior extensive compartment of compartment. ठीक है? अच्छा, अब ये जो आपकी रेडियल नर्व आ रही थी ना यहाँ से, जी सर, तो इन द क्यूबिटल फोसा when it will give the deep branch, ये तो सफेद ब्रांच पढ़ ली ना? जी सर, The deep branch will go, it passes through the substance of the, so it pierces the superior muscle. यस सर, And in the substance of superior muscle, it winds on the lateral aspect of the radius, then, right, and then it is going to enter into the posterior compartment of the फोरआर्म, forearm and continues at the posterior dorsal nerve. ठीक है, ठीक है, ये posterior posterior dorsal dorsal nerve बन जाएगी, ठीक है जी? ये आपकी ये फेट है इसका रेडियल नर्व। सर हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म कर लेते हैं। होल्ड कर